ذرا یاد کیجئے، تصویر میں دی گئی چیزوں کی فہرست بنا کر بتائیے کہ وہ جاندار ہیں یا غیر جاندار۔ جانداروں کی دنیا۔ آج کے اس سبق میں ہم جانداروں کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے اطراف کئی قسم کی نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں۔ ان کی کچھ خصوصیات میں یکسانیت اور کچھ خصوصیات میں فرق نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود چند اہم خصوصیات کی بنا پر ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام جاندار ہیں۔ غیر جانداروں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ یہ خصوصیات ہی ان کے جاندار ہونے کی علامت ہیں۔ آئیے ہم ان خصوصیات کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ بتائیے تو بھلا، تصویر میں حیوانات کے بچوں اور حیوانات میں کون کون سے فرق نظر آتے ہیں؟ بچے کی نشوونما ہو کر وہ بالغ عورت یا مرد میں تبدیل ہوتا ہے۔ نشوونما کے زمانے میں قد، وزن اور طاقت وغیرہ میں اضافہ نظر آتا ہے۔ تمام حیوانات کے اس طرح نشوونما پا کر بالغ ہونے کے لیے مخصوص عرصہ درکار ہوتا ہے۔ انسان کی نشوونما کے لیے عام طور پر 18 سے 21 برس درکار ہوتے ہیں۔ عمل کیجیے۔ گملے میں اگا ہوا ایک پودا لے کر اس کے سرے کو ایک دھاگا باندھیے اور اس کا دوسرا سرا اوپر کیل یا کھوٹی کو تان کر باندھیے۔ 10 تا 15 دن بعد اس کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا نظر آتا ہے؟ پودوں میں ہونے والی نشوونما ہمیں کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ تمام نباتات میں خاص طور پر تنے کی موٹائی اور اونچائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نشوونما کے دوران کچھ نباتات کی شاخیں نکلتی ہیں جبکہ بعض میں شاخیں نہیں نکلتی۔ تمام جانداروں میں نشوونما ہونے کے باوجود حیوانات کی نشوونما مخصوص عرصے تک ہی ہوتی ہے، لیکن نباتات کی نشوونما جب تک وہ زندہ رہیں ہوتی رہتی ہے۔ جانداروں میں نشوونما جسم کے اندر ہوتی رہتی ہے، یعنی جسم کے اندر تمام حصوں کی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ نشوونما کے لیے غذا کی ضرورت۔ نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتی ہیں۔ زمین سے پانی اور غذائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس حاصل کر کے یہ غذا تیار کرتی ہیں۔ یہ عمل نباتات کے پتوں میں ہوتا ہے۔ پتوں میں خضرہ کلوروفل کی مدد سے سورج کی روشنی میں یہ عمل ہونے کی وجہ سے غذا تیار ہونے کے اس عمل کو شعاعی ترکیب کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران نباتات آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں۔ نباتات کے پتوں میں خضرے کی موجودگی کی وجہ سے وہ ہرے نظر آتے ہیں۔ حیوانات میں خضرہ نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے، وہ اپنی غذا تلاش کرتے ہیں۔ بکری، بھیڑ، گھوڑا جیسے حیوانات گھاس کھاتے ہیں، جبکہ شیر ببر جیسے جنگلی جانور سبزی خور حیوانات کا شکار کر کے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ غذا کا استعمال اور اس کی وجہ سے ہونے والی نشوونما جانداروں کی خصوصیت ہے۔ مشاہدہ کر کے بحث کیجیے۔ اپنی ناک کے پاس یا سینے پر ہاتھ رکھیے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سوئے ہوئے کتے کے پیٹ کی حرکت کیسی نظر آتی ہے؟ تنفس۔ جانداروں کی خصوصیات۔ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کو استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں۔ مچھلیاں، سانپ، چوہے، سینڈی، جھینگر جیسے حیوانات میں تنفس کے لیے مخصوص اعضاء پائے جاتے ہیں، جبکہ نباتات ان کے تنوں اور پتوں پر خوردبینی مسامات کے ذریعے تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں۔ تنفس جانداروں کی خصوصیت ہے۔ ذرا یاد کیجئے، کیا ہمارے ذریعے کھائی ہوئی تمام غذا جسم میں استعمال ہوتی ہے، یا بیکار غذائی مادے کس چیز میں تبدیل ہوتے ہیں؟ اخراج۔ حیوانات کے جسم میں ہونے والے دوسرے کئی افعال کے دوران بیکار مادے تیار ہوتے ہیں، انہیں فاسد مادے کہتے ہیں۔ ان فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں۔ حیوانات میں اخراج کے لیے مختلف اعضاء پائے جاتے ہیں۔
नबातात में भी इखराज का अमल होता है। मसलन कुछ नबातात के मखसूस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। नबातात के पत्तों में जमा फासिद मादे पत्तों के साथ गिर जाते हैं। अमल कीजिए। प्लास्टिक की एक शफ़ाफ थैली लीजिए। इस तस्वीर में बताए हुए तरीके से उसे एक पत्ते पर बांधिए। 6-7 घंटों के बाद उसका मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आता है। थैली की अंदरूनी सतह पर पानी के कतरे नज़र आते हैं, यानी नबातात में आबी बुखारात की शक्ल में पानी खारिज करते हैं। अमल इखराज जानदारों की खुसूसियत है। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। क्या आपको इसका तजुर्बा हुआ है? ये अफ़आल अंजाम पाने पर क्या तब्दीली महसूस होती है? नंबर 1, आँखों पर अचानक रोशनी का पड़ जाना। नंबर 2, हाथ पर अचानक किसी ने चुटकी ली या पिन चुभोई। नंबर 3, छुई मुई के पौधे को हाथ लगाया। नंबर 4, दिन डूबने के बाद आंगन या रास्तों पर बिजली के बल्ब रोशन हुए और अतराफ में कीड़े जमा हो गए। जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत। जानदारों में मुहर्रिक के जवाब में मुख्तलिफ अमल होते हैं। मसलन आप गाय भैंस के कोठे में अचानक दाखिल हों तो उनका खड़ा हो जाना, इधर से उधर जाना, गाय का पुकारना, ये सब हरकतें हैं। आंगन में लगी हुई बेल भी सहारे की जानिब झुकती है। गमले में लगा हुआ पौधा खिड़की में रखें तो वो सूरज की रोशनी की जानिब झुकता है, यानी उसमें हरकत होती है। जानदारों में ये हरकत खुद ब खुद होती है। अतराफ में होने वाले वाक़े यानी मुहर्रिक और उसके जवाब में जानदारों में जो अमल होता है वो जवाबी अमल या रद्द अमल कहलाता है। मुहर्रिक के जवाब में होने वाले अमल को रद्द अमल की सलाहियत कहते हैं। रद्द अमल की सलाहियत जानदारों की खुसूसियत है। अफजाइश नस्ल। जानदार अपने जैसे जानदारों को जन्म देते हैं। कुछ जानदार बच्चे देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं। इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। नबातात में बीजों, तनों और पत्तों के जरिए नए पौधे तैयार होते हैं। जानदारों के अपने जैसे दूसरे जानदारों को जन्म देने का अमल अमल तौलीद या अफजाइश नस्ल कहलाता है। अफजाइश नस्ल जानदारों की अहम खुसूसियत है। मुशाहिदा करके बहस कीजिए। मुकर्ररा अरसे हयात। ज़िंदगी के दौरान एक ख़ास मरहले पर जानदार अफजाइश नस्ल का फ़ेल अंजाम देने के काबिल होते हैं। वक्त के साथ साथ उनके तमाम आज़ा कमज़ोर होते जाते हैं और एक ख़ास अरसे के बाद उनका अरसे हयात ख़त्म हो जाता है, यानी उन्हें मौत आ जाती है। मुख्तलिफ नबातात और हैवानात के अरसे हयात मुख्तलिफ होते हैं। मसलन कुत्ते का अरसा हयात आम तौर पर 12 ता 18 बरस होता है, जबकि शतरमुर्ग तकरीबन 50 बरस जिंदा रहता है। क्या आप जानते हैं जनूबी अमेरिका के करीब गीला पैगास जजीरे पर पाए जाने वाले कछुए का अरसा हयात तकरीबन 170 बरस होता है। मेफ्लाई का अरसा हयात 1 घंटे से 24 घंटे तक होता है। बताइए तो भला, शहद की मक्खी के छत्ते या किसी दीवार का मुशाहिदा कीजिए, ये किस शय से बने हुए होते हैं। आपने शहद के छत्ते के छोटे छोटे हिस्से यानी खाने देखे होंगे। इन खानों के एक दूसरे से जुड़ने से शहद का छत्ता तैयार होता है। मकान की दीवार भी ईंटों के जरिए बनती है। ये तमाम ईंटें एक दूसरे से जुड़ें तो दीवार तैयार होती है। खलियात की साख्त। जानदार जिन छोटे छोटे अज्जा से बने होते हैं इन्हें खलियात कहते हैं। जानदारों के जिस्म के तमाम अफ़ाल खुर्दबीनी खलियात की मदद से अंजाम पाते हैं। कुछ जानदार एक ही खलिये से बने होते हैं, इन्हें यक खलवी जानदार कहते हैं। कुछ जानदार कई खलियात से मिलकर बनते हैं, उन्हें कसीर खलवी जानदार कहते हैं।
अमीबा और कुछ खुर्दबीनी जानदार यक खलवी जानदार हैं, जबकि इंसान, गाय, चूहा, झिंगर, हाथी, बरगद का दरख्त, प्याज का पौधा वगैरह ये तमाम कसीर खलवी जानदार हैं। जानदार यक खलवी हों या कसीर खलवी, जानदारों की तमाम खुसूसियात हर खलिए में पाई जाती हैं। कौन क्या करता है? कौमी महकमा नबाती सर्वे 1890 और कौमी महकमा हैवानी सर्वे 1916 आज़ादाना तौर पर भारत के मुख्तलिफ हिस्सों की नबातात और हैवानात का सर्वे और हिफाजत का काम करते हैं। हमें अपने अतराफ़ व इकनाफ में कोई नया पौधा या हैवान नज़र आए तो हम इस इदारे से रब्त पैदा करके उनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। फ़ायदेमंद जानदार नबातात घर में और सनतों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेथी, आलू, भिंडी, सेब, केला। इनका इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर होता है, जबकि अडुलसा, हिड्डा, बहिड़ा, हालून, शतावरी का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। हैवानात भी हमारे लिए इसी तरह मुफीद हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस घरेलू इस्तेमाल के लिए पाले जाते हैं। मछली, भेड़, मुर्गियों का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर किया जाता है, जबकि घोड़ा, बैल, ऊँट जैसे मुख्तलिफ हैवानात कारोबार में फ़ायदेमंद हैं। केचवा काश्तकारी में बेहद मुफीद है। नुकसानदा जानदार हमारे अतराफ पाए जाने वाले कुछ नबातात और हैवानात इंसान के लिए नुकसानदा होते हैं। मसलन मच्छर, मक्खी अमराज को फैलाते हैं। झिंगर, चूहे, घूंस ग़िज़ा को बर्बाद करते हैं। लार्वे, लीख, चेचड़ी की वजह से कई अमराज होते हैं, जबकि कुछ इकसाम की छिपकलियाँ, जहरीली मकड़ी, जहरीले सांप और बिच्छू के काटने से मौत भी वाक़ हो सकती है। हाथी जंगल से निकलकर इंसानी बस्ती में आ जाए तो बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही मचा देते हैं। हैवानात की तरह कुछ नबातात भी नुकसानदा होते हैं, मसलन गाजर घास, गैर ज़रूरी घास, अमर बेल वगैरह। कांचकुरी, अरवी जैसी नबातात के पत्तों को हाथ लगाया जाए तो हमारे हाथ में खुजली होती है। कन्हेर और घानेरी में नागवार बू होती है। धतूरा एक जहरीला पौधा है। फफूंद और काई की तेज़ी से नशोनुमा से पीने का पानी आलूदा होकर बीमारियां फैलती है। खूंखार जानदार जंगल में रहने वाले ऐसे हैवानात जो दूसरे हैवानात का शिकार करके खाते हैं, उन्हें खूंखार हैवानात कहते हैं। मसलन शेर, शेर बबर, भेड़िया, तेंदुआ वगैरह। बाज़ औक़ात जंगल के ख़त्म होने से ये ग़िज़ा के लिए इंसानी आबादी में घुसकर बड़े पैमाने पर पालतू जानवरों और इंसान तक को अपना शिकार बना लेते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, कुदरत में पाई जाने वाली मुख्तलिफ नबातात और हैवानात हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उनका इस्तेमाल कीजिए। बिला वजह नबातात के पत्ते, फूल और फल तोड़ने से परहेज़ कीजिए। हैवानात का शिकार ना करें और उनको तकलीफ़ ना दें। नबातात और हैवानात की हिफाजत हम तमाम की जिम्मेदारी है। हमने क्या सीखा? नशोनुमा, तनफ़ुस, इखराज, अफजाइश नस्ल, हिस्स पजीरी, हरकत और मखसूस अरसा हयात जिस्म में खलियात का पाया जाना जानदारों की खुसूसियात हैं। हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक होती है। नबातात में ज़िंदगी भर नशोनुमा होती रहती है। हैवानात में तनफ़ुस के लिए मखसूस आज़ा पाए जाते हैं, जबकि नबातात में तने और पत्तों पर मखसूस मौजूद खुर्दबीनी मसामात के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम पाता है। जिस्म के बेकार मादों को बाहर खारिज करना अमल इखराज, इस्तखराज है। तमाम जानदारों में अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की खुसूसियत पाई जाती है। मुहर्रिक के जवाब में रद्द अमल की सलाहियत की वजह से ही जानदारों में हरकत होती है।
نباتات اپنی چند مخصوص حرکت کے باوجود حیوانات کی طرح اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جانداروں کا عرصہ حیات مقرر ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کئی نباتات اور حیوانات فائدہ مند ہیں۔ کچھ نباتات اور حیوانات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جانداروں کے جسم کا سب سے چھوٹا جزو خلیہ کہلاتا ہے۔